Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start with long-term regulation of blood pressure. As we have studied earlier, in chapter 17 we studied about local control of blood flow, and in chapter 18 we studied about rapid control of circulation, which was about arterial pressure control. We studied about baroreceptor reflexes, chemoreceptor reflexes, Cushing's reaction, CNS ischemic response, and some other reflexes. Now keep in mind that those reflexes worked for a few minutes or maximum 2 hours. In first few minutes of blood pressure increase or decrease, the baroreceptors and chemoreceptors, they come into action and they control the arterial pressure. On the other hand, we have some intermediate reflexes. Those intermediate reflexes include some capillary shift fluid mechanism, that whenever there is a decrease in blood pressure, the capillaries, their arterial pressure decreases. And just recall from chapter number 16 that there were hydrostatic or stalling forces across the capillary membrane. When arterial pressure is reducing, so instead of giving away or filtration of nutrients and blood towards the tissues, there will be net absorption from the capillaries. On the other hand, if the blood pressure is more, there will be increased filtration. So both will work as a negative feedback mechanism. If there is increased pressure, more fluid out of the blood into the out of the blood capillaries, out of the arterial end of the capillaries into the tissues. So the blood pressure will reduce as an effect. On the other hand, if the blood pressure is reducing, there will be net reabsorption. And when there will be net reabsorption, the capillaries, they will imbibe blood, and when they will take in the blood, what will happen? The capillaries, they will shift the blood from the tissues and interstitial fluid towards the arteries, towards the circle. So when we are talking about intermediate regulation of blood pressure, you all must remember this slide from chapter number 16, that arterial end of capillaries had a higher pressure, which was a net filtration pressure, and the venous end has a net reabsorptive pressure. Now what happens in delayed or intermediate mechanism of capillary fluid shift phenomena? When there is an increase in blood pressure, more fluid is filtered from the capillary wall into the interstitial spaces here. And when it is decreased, so instead of net absorption just from venous end, it also starts from the arterial end. This is very easy to understand if you have recalled in your mind chapter number 16. Now discussing the long-term pressure regulation, remember that the blood pressure has two major components. One is the cardiac output, the thrust force from the heart, that is known as the cardiac output. The cardiac output is the amount of blood pumped by the left ventricle into aorta in each minute. In one beat, it is 70 ml, that is known as stroke volume. If the heart rate is 72 beats per minute, so it becomes about 5040 milliliters. And in normal terms, to ease up the learning process, we just take cardiac output as 5 liters per minute. So in each heartbeat, the stroke volume is 70 ml. Remember this by heart. In one heartbeat, 70 ml stroke volume. In 1 minute, heart rate 72. 72 into 70, 5040. That is cardiac output. Cardiac output is equal to 5 liters per minute. So total peripheral resistance, as we studied in the earlier chapters, it is the resistance of the whole circulation. There is a fast acting mechanism which is further controlled by three factors: intrinsic, extrinsic, and paracrine. The extrinsic mechanism, which controls the total peripheral resistance, the degree of distension and relaxation of arteries, it involves the baroreceptors reflex and the chemoreceptors reflex.
However, the blood volume in toto as a long-term regulatory mechanism, it is basically controlled by renal systems, which are basically involving renin-angiotensin system, ADH, antidiuretic hormone, also known as vasopressin, and some low pressure volume receptors that we will discuss subsequently. So first of all, understand renin-angiotensin system. It is the most important mechanism for sodium retention in order to maintain the normal blood volume. So sodium is the major indicator. Whenever there is any drop of renal blood flow or decreased sodium, it will stimulate volume receptors in JG apparatus. We will show the JG apparatus soon in the juxtaglomerular apparatus of the kidneys, which start secreting renin. Let me color it for you so that you can remember. So renin is the first hormone. अब होता क्या है, जब किडनीज की तरफ ब्लड जाता है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो सोडियम भी कम हो जाता है. अब सोडियम की कमी को फ़ौरन जेजी एपरेटस के अंदर सेल्स लगे हुए रिसेप्टर सेल्स जो कि इसको फौरी तौर पे महसूस करते हैं, सेंस करते हैं. अब उसके बाद क्या होता है, रेनिन जो है वो फौरी तौर पर सिक्रीट होना शुरू हो जाता है. देन रेनिन इन टर्न एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिन सिस्टम लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. So this is the initial message receiver, this is the second message receiver or second arbitrator, and this is the final response, the aldosterone. Now what is happening here? Decreased renal blood flow, the juxtaglomerular apparatus will immediately sense it, it will start secreting renin, and renin will cause the conversion of inactive angiotensinogen into angiotensin 1. Angiotensin 1, it is converted with the help of angiotensin converting enzyme. It is also known as ACE, angiotensin converting enzyme. This will convert angiotensin 1 into 2 and then 2 into 3. This should be actually, this particular should be here and this should be here. Angiotensin 1 is converted with the help of converting enzymes into angiotensin 2, and this angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor in itself, as well as it gives rise to another form of angiotensin, angiotensin 3, which is yet another powerful vasoconstrictor. And finally in the adrenal cortex it converts corticosterone into aldosterone. So now these three hormones, you have to remember that these are the major hormones: angiotensin, renin, angiotensin, and finally aldosterone. So 1, 2, 3, the initial stimulus was decreased renal blood flow. Now what is happening when increased arterial pressure is occurring in a normal person? A normal person will immediately start excreting more urine. This is 100, so if we draw a line here from here to here, the normal urinary volume, we take it as standard 1 time normal at 100 mean arterial pressure. As the arterial pressure raises to 120, see the increased output of urine, it occurs. As it raises to 140, 3 times, as it raises to 160, 4.5 times. So with every 20 millimeters mercury rise in arterial pressure, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होती जाती है. तो इसीलिए जब हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक हाई नहीं रहता, प्रेशर डायरेसिस शुरू हो जाता है, यूरिन स्टार्ट्स एक्सक्रीटिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड. अब ये तो हो रहा है मेरे और आप में, नॉर्मल बंदों में जिनको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देता, उनका किडनी खुद से ही ज़्यादा एक्सक्रीशन स्टार्ट कर देता है. यही एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन अब आगे आपको समझ आता जाएगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट एंड आर्terial प्रेशर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम. Now what is happening here, that whenever the arterial pressure is
इज़ मेंटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100 के ऊपर है, सडनली आप इन्फ्यूज़ करते हैं, आप एक ड्रिप लगाते हैं उस बंदे को, और उस ड्रिप के फ़ौरन बाद क्या होता है, आर्टेरियल प्रेशर इमीडिएटली इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस अगले 1 घंटे के अंदर अंदर 60 मिनट्स के बाद 120 मिनट्स फिर नॉर्मल पे आ जाता है। अब जो इतना सारा इंक्रीज़ हुआ थी, देखो 200 पे चला गया, ये फ्रॉम 200 इट विल कम बैक टू 100। नाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल विद एन इंक्रीज़ इन यूरिनरी आउटपुट। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, यूरिन आउटपुट जो इतनी कम चल रही थी एकदम इंक्रीज़ हो गई, 3 ml पर मिनट पे पहुंच गई, 0.25 ml से बढ़ के 3 ml पे। काफ़ी सारा यूरिन जब एक्सक्रीट हो गया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हुआ, यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल आना शुरू हो गई, और फाइनली इट कम्स टू द बेसल लेवल जहाँ से स्टार्ट हुई थी। लेकिन मीनवाइल इसके इफेक्ट से ये कम हो गया। दिस डिक्रीज इन यूरिनरी आउटपुट विल cause a decrease in arterial pressure. Same effect will be seen in the cardiac output. Immediately जैसे arterial pressure rise हुआ था, जैसे ही आपने इन्फ्यूजन लगाई थी इस जगह पर, अब यहाँ पर याद रखिएगा दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आपने एक ड्रिप लगाई, उसे ड्रिप लगाने के बाद आर्टेरियल प्रेशर राइज हुआ, साथ ही यूरिन आउटपुट राइज हुई, और साथ ही कार्डियक आउटपुट भी राइज हो गई। हार्ट के ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट, वो याद करें डायरेक्ट SA नोड के ऊपर जो इफेक्ट होता था, और बेन ब्रिज रिफ्लेक्स याद कीजिए, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ हार्ट रेट होने की वजह से। लेकिन थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ यूरिन आउटपुट होने की वजह से, इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन होने की वजह से वापस बैक टू नॉर्मल। पैरामीटर 1 ब्लड प्रेशर, पैरामीटर 2 यूरिन, पैरामीटर 3 कार्डियक आउटपुट, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। इसका मैंने अलग अलग इस तरह समझाया आपको, ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए। Now equilibrium point is very important. At an equilibrium point the pressure is maintained at 100, वाटर और सॉल्ट इनटेक बराबर रहती है, आपका प्रेशर 100 पे मेंटेन रहता है। ये तो है नॉर्मल लोगों में। अब इस एक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, समझने की बात यह है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। वो ये है कि ब्लड प्रेशर पर होता क्यों है, अगर सब कुछ इतना नॉर्मल है तो फिर लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता क्यों है, लोग हाइपरटेंसिव होते क्यों हैं, वाई पीपल आर हाइपरटेंसिव? दिस इज़ बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ equilibrium point. Either the equilibrium point is shifted horizontally or vertically, 150 के ऊपर वो नॉर्मल सेट हो जाता है। यहाँ पर नॉर्मल देखो ब्लू वाले पॉइंट्स के, ब्लू वाले ग्राफ्स के अंदर नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट वाज एट 100 मिलीमीटर्स, लेकिन किसी वजह से अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट एक हायर पॉइंट के ऊपर सेट हो जाए, या तो इनटेक ज़्यादा होने की वजह से या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, तो फिर किडनीज़ अपना फंक्शन उतना अप्रोप्रिएटली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में नहीं कर सकती। अब इसकी हम आगे पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की टाइप्स में कि क्यों क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एट दिस पर्टिकुलर लेवल इक्विलिब्रियम पॉइंट ही 150 पे शिफ्ट हो गया। जो 100 को नॉर्मल समझ रहा था, अब वो 150 को नॉर्मल समझ रहा है। So long-term control involves hormonal control, renin, angiotensin, aldosterone system. This nexus of 3 hormones: ADH, vasopressin, and there is another hormone, atrial natriuretic. It should be natriuretic. Natri is for sodium, uretic is for excretion. A peptide which is excreting sodium, which is leading to pressure natriuresis. Now what is happening in toto? जब आप पूरा देखते हैं, reduced renal blood flow, JG apparatus senses, renin secrete to angiotensin, angiotensin 1 activated to angiotensin 1, angiotensin 2, and then angiotensin 2 से angiotensin 3 भी आती है. It increases aldosterone secretion. Aldosterone secretion क्या करेगा? It will start retaining sodium. Aldosterone is a hormone to retain sodium. Fluid ज़्यादा reabsorb होगा, फ्लूइड ज़्यादा reabsorb होगा तो उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर प्री लोड ज़्यादा आएगा। रिमेंबर फ्रॉम द डिस्कशन ऑन हार्ट, इंक्रीज आफ्टर लोड होगा। सिमिलरली एंजियोटेंसिन 2, एनजीओ मीन्स ब्लड वेसल, टेंसिन मीन्स टेंस कर देता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है आर्टरीज की भी और वेन्स की भी। नाउ व्हाट इज़ दिस डूइंग? दिस विल कॉज एन इंक्रीज आफ्टर लोड। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा?
वो जो रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो हुआ था उसका नेगेटिव फीडबैक लूप चला जाएगा, यहाँ से नेगेटिव फीडबैक लूप जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दिस विल कॉज अ नेगेटिव फीडबैक लूप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. यहाँ से यहाँ पर एक नेगेटिव फीडबैक का लूप बन गया. ठीक है, ये हम इसको ख़त्म कर देते हैं. तो आपका जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था वो सारा का सारा वापस चला जाएगा. दिस इज़ व्हाट दिस होल सिस्टम इज़ डूइंग. सेकेंड जो आपका सिस्टम है दैट इज़ ADH. ADH क्या करेगा? एंटी डायूरेसिस. डायूरेसिस इज यूरिन प्रोडक्शन. एंटी डायूरेसिस ऑपोजिट टू. Whenever there is hypovolemia and dehydration, this will stimulate the osmoreceptors in the hypothalamus, which will lead to release of ADH from posterior pituitary gland. ADH will cause water reabsorption and at kidney tubules. Third hormone is second hormone is vasopressin. कि ADH ही का दूसरा नाम है. यहाँ पर ADH हमने कहा, इधर अब हम वेजोप्रेसिन वाला इसका काम करें. ADH से हमने कहा कि एंटी डायरेसिस के किडनीज़ के अंदर से पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन कम आएगा. यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा नाम से पता लग रहा है वेजोप्रेसिन. इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन. सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय अनलोडिंग ऑफ एओर्टिक बेरोसेप्टर्स एंड एट्रियल सेंसर्स. आपके बेरोसेप्टर्स ने फ़ौरन सेंस कर लिया तो ADH को मैसेज चला गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट ADH. नाउ वेजोप्रेसिन विल कॉज अ डायरेक्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट एंड इट विल इंक्रीज द आर्टेरियल प्रेशर. वही रिवर्सल हो गया इनिशियल का. थर्ड इज एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड. एट्रिया से सिक्रीट हो रहा है. काम क्या है? नेट्रीयूरेसिस. नेट्री सोडियम, यूरेसिस इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन इन यूरिन. इट इंक्रीज सॉल्ट एक्सक्रीशन वाया किडनीज. इसी से इसका नाम बन रहा है. बाय रिड्यूसिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स. ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है. Relaxes the renal arterioles and it inhibits sodium reabsorption in the distal tubule. It is released in response to stimulation of atrial receptors. ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है. So summary of long-term blood pressure control includes cardiac output and blood pressure depend on renal control of extracellular fluid volume via pressure natriuresis, changes in vasopressin, aldosterone and atrial natriuretic peptide. They are all under the control of altered vascular cardiovascular receptor signaling. अब इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि ये सब तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे आई? प्रॉब्लम कहाँ पे? ब्लड प्रेशर हाई कैसे हुआ? नाउ दिस इज़ नोन एज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन. मैकेनिज्म क्या है हाइपरटेंशन का? अब क्या होता है कि एक बंदा जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट लिए जाता है हिज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इट इंक्रीजेज. क्योंकि सॉल्ट के लिए ज़रूरी है कि उसका बैलेंस मेंटेन रहे, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाता है. उससे क्या होता है कि आपको हाइपरनेट्रीमिया से बचाने के लिए पानी ज़्यादा रिटेन होता है, तो दैट विल इंक्रीज द आर्टीरियल प्रेशर एंड इट विल फर्दर डिक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. देन इट विल डिक्रीज रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, रिटर्न ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल एंड रिटर्न ऑफ आर्टीरियल प्रेशर बैक टू नॉर्मल. ये तो हुआ नॉर्मल आदमी में. आपने बहुत ज़्यादा नमक मिर्च वाला खाना खा लिया, मैकडोनल्ड का बर्गर खा लिया, तो उसमें ये प्रॉब्लम हुई. मैकडोनल्ड इज़ अ हाई सॉल्ट फूड, और इसके अलावा जितने आपके फास्ट फूड्स होते हैं देर हाई सॉल्ट फूड्स. बट व्हाट हैपन्स इन अ हाइपरटेंसिव पर्सन? ये हम एक मॉडल से समझते हैं. दिस इज नोन एज वन किडनी गोल्ड ब्लैट हाइपरटेंशन मॉडल. ये एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड ब्लैट ने. उसमें उसने क्या किया कि एक किडनी को क्लैम्प कर दिया, एक किडनी रिमूव कर दी और जो एक किडनी बच गई उसको क्लैम्प कर दिया उसकी रीनल आर्टरी को. और क्लैम्प करने से क्या हुआ कि आर्टरी के अंदर ब्लड कम गया. अब ये देखो, ये क्लैम्प लगा दिया दोनों साइडों से, इसके ऊपर एक ट्वीज़र लगा दिया, प्रिच लगा दिया. अब ये ब्लड कम हो गया. जब ये ब्लड फ्लो कम हुआ तो किडनीज़ के अंदर ब्लड कम गया. अब किडनीज़ के अंदर ब्लड कम जाने से क्या हुआ कि यहाँ पर उसको सेंस हुई कि यार मुझे इस्कीमिया हो रहा है. देयर इज़ सम डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इट विल स्टार्ट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन. याद है, जस्टोग्लोमेरुलर apparatus से फ़ौरन रेनिन सिक्रीट होगा. रीनल आर्टरी को जैसे ही कंस्ट्रिक्ट किया,
रेनिन सिक्रीट हुआ। अब रेनिन ने क्या किया, एल्डोस्टेरॉन वाला पूरा एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 एंड फाइनली एल्डोस्टेरॉन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब उससे क्या हुआ, जैसे ही आपने रीनल आर्टरी को यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट किया, अब असल में कुछ नहीं था लेकिन रेनिन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। रेनिन इंक्रीज़ हुआ तो ये देखो एकदम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और थोड़ी अर्से के बाद वहीं पे सेट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन ये ख़त्म की, ये क्लैम्प हटाया यहाँ से, यू रिमूव दिस क्लैम्प, ये आपने क्लिप यहाँ से उठा लिया, आर्टरी खुल गई, ब्लड प्रेशर ये तेज़ी से वापस आना शुरू हुआ। नाउ कंस्ट्रक्शन इज रिलीज, ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल। और ये ग्राफ क्या दिखा रहे हैं, जैसे ही आपने आर्टरी कंस्ट्रक्ट की थी रेनिन इंक्रीज़ हुआ और ये रेनिन बैक टू नॉर्मल आ गया, कुछ अरसे बाद बेसल लेवल पे आ गया। लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि मीन ब्लड प्रेशर 100 से इंक्रीज़ होकर 200 पे हो गया, कि वो सेट हो गया एक नए लेवल के ऊपर। अब जब आपने कंस्ट्रक्शन रिलीज़ की तो रेनिन अपने बेसल लेवल से भी नीचे गिर के ज़ीरो पे टच हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ख़त्म ही हो गया कि नहीं भाई नहीं चाहिए किसी किस्म का ब्लड प्रेशर में कमी बेशी इस वक्त नहीं चाहिए हमें। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, हाइपरटेंशन 95% केसेस में एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, जिसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाती है, यानी कि उसकी कोई कॉज हमें समझ नहीं आती। 5% केसेस में इट इज़ सेकेंडरी टू सम अदर प्रॉब्लम। ये अब देखिए वही बात जो हमने की थी यूरिनरी आउटपुट और आर्टेरियल प्रेशर की, शुरू में जो बात की थी कि 100 के ऊपर तो यूरिनरी आउटपुट नॉर्मल रहती है, लेकिन 120 के ऊपर बढ़ जाती है, 140 के ऊपर बढ़ जाती है। तो हुआ क्या प्रॉब्लम, एक्विलिब्रियम पॉइंट तो नॉर्मल था, मेंटेन था, लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये 150 के ऊपर एक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब 150 के ऊपर जब एक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम जो था वो भी बढ़ गया और बॉडी के अंदर हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आना शुरू हो गया। एक मोटर ने 10 लीटर पानी चढ़ाना है, एक मोटर ने 100 लीटर पानी चढ़ाना है और ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट चढ़ाना है, ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है, तो उस मोटर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिसको ज़्यादा वाटर चढ़ाना है और ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट चढ़ाना है। तो द हार्ट विल स्टार्ट हैविंग एन अफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड वर्क आउटपुट। अब आपके दो सिनेरियोज हैं, एक तो टीपीआर इंक्रीज़ होगी, एक कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगी। आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो आइदर यू इंक्रीज द कार्डियक, दोनों ही फैक्टर्स में से कोई एक इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह वाइस वर्सा है कि जब आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट के ऊपर भी लोड ज़्यादा आ जाएगा और उसकी वजह से मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी भी अफेक्ट होगी, वीनस रिटर्न भी अफेक्ट होगी। और आर्टीरियोल्स के ऊपर क्या आएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर vasoactive substances and thickening of arterial wall. So you have to remember these two things, TPR, cardiac output. These are the major determinants of blood pressure. अच्छा, वन किडनी कोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन हमने कर ली। अब उसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, टू किडनी कोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन। टू किडनी कोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन में क्या हुआ था कि बोथ किडनीज आर इंटैक्ट। इसमें तो एक किडनी है, तो टू किडनी में क्या होगा, both kidneys are intact. Let me name it two kidney. So टू किडनी में दूसरा किडनी भी मौजूद है और दूसरा किडनी जब मौजूद होगा तो उसमें क्या होगा कि एक को क्लैम्प किया, दूसरा नॉर्मल है लेकिन दूसरा मौजूद है। दूसरा किडनी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, चलिए एक शेप दे देता हूँ ताकि आप उसको एज्यूम कर दें कि दिस इज़ द अदर किडनी, ये दूसरा किडनी है, दिस इज़ द नॉर्मल किडनी, इसको कुछ भी नहीं हुआ, बस आप इसको एज्यूम कर लें कि दिस इज़ किडनी 2. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, दैट किडनी 1 इज़ हैविंग एन आर्टरी विच इज़ क्लैम्प्ड, बट ऑन द अदर हैंड किडनी 2 हैज़ अ नॉर्मल रीनल आर्टरी, वहाँ पर नॉर्मल जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, अब मैं आपको एक जो नुकता समझाने लगा उसको गौर से समझ लें, रेनिन दोनों से ही सिक्रीट होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि टोटल सर्कुलेशन पर इफेक्ट यही आ रहा है कि इस्कीमिया है, इस्कीमिया, इस्कीमिया है। तो जेजी एपरेटस का इफेक्ट जो पीछे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है यही आ रहा है कि आई एम हैविंग इस्कीमिया। तो जैसे आपने सुना ना मे डे कॉल, तो ये मे डे कॉल देते हैं, दूसरे किडनी को भी कहते हैं कि भाई अपनी फोर्सेस भी लगा दो, मुझे इस्कीमिया हो रहा है। तो किडनीज दोनों मौजूद हैं,
although one kidney is having a clamped or constricted renal artery, but kidney 2 will also have an increased secretion of renin. अब उस increased secretion of renin की वजह से 2 किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन में एक किडनी नॉर्मल है लेकिन तब भी वो कॉज कर रहा है हाइपरटेंशन. सो दिस इज़ नोन एज 2 किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन. ये आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ आनी चाहिए कि 1 किडनी और 2 किडनी में क्या फ़र्क होता है. Essential hypertension, it does not have a single or specific cause. Pathogenesis is probably a slow and gradual process. Initial phase has increased cardiac output, later phase has increased peripheral arterial resistance. Now TPR and cardiac output, they go side by side. एक दफ़ा हाइपरटेंशन डेवलप हो गई तो अब चलेगी, वो काफ़ी अर्सा चलेगी, बेशक जो इनिशियल कॉजेटिव फैक्टर्स थे वो ख़त्म भी हो जाए. What will happen? That increased extracellular fluid volume will increase the blood volume, increase venous return, increase cardiac output. ऑटो रेगुलेशन होने के बावजूद इंक्रीज टोटल ब्लड रेजिस्टेंस हो गई और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया. दिस इज़ हाउ इंक्रीजिंग द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बाय 33% विल इंक्रीज ऑल दिस पैरामीटर्स. कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गई, आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ गया, टीपीआर भी पहले कम हुआ फिर इंक्रीज हो गया. Mechanism of essential hypertension, either increased activity of the excess renin angiotensin aldosterone activity, hyperfunction of sympathetic system, vasoactive substances lead to endothelial dysfunction, insulin resistance, obesity, इसको अलग पॉइंट कर देते हैं, arteriolar dystrophy and renal defect to excrete sodium. So this is the same hyperactivity of this whole nexus. रेनिन इंक्रीज़ हो गया या है हाइपर सेंसिटिव हो गया, किसी भी लेवल पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपरली काम नहीं करता और एक शख्स को एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है. सो कैटेकोलामीन्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. एक ऐसा शख्स जिसको हर वक्त सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा है एंग्जाइटी की वजह से, डर खौफ की वजह से या स्ट्रेस में रहने की वजह से, उसका सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है. कैटेकोलामीन्स दे स्टार्ट इंक्रीजिंग their activity and finally it will cause an increase in blood pressure. So these are the things जो मैं अभी बात करता हूँ. obesity, stress, sodium retention, renal hypertension, hypoperfusion, इसकी वजह से angiotensin 2 बढ़ता है, सोडियम की वजह से natriuretic hormone, स्ट्रेस की वजह से कैटेकोलामीन्स, obesity की वजह से इंसुलिन. all these have pressure effects on the blood pressure के इंक्रीज़ करते हैं. सोडियम और वाटर की ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाती है जिसके अफेक्ट में वाटर रिटेन होता है और फाइनली इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डेवलप होती है जिससे हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है. उसकी वजह से फाइनल रिजल्ट क्या आता है? हाइपरट्रॉफी ऑफ आर्टीरियोलर वॉल. आर्टीरियोलर वॉल थिक हो जाती है. एक पाइप जो पहले बहुत खुला सा था जिसके अंदर से आराम से ब्लड पास हो रहा था, अब वो थिक होना शुरू हो गया. उसको मुस्तकिल टेंशन की वजह से उसके अंदर स्टिफनिंग होना शुरू हो गई, उसकी मज़ीद लेयर्स बनना शुरू हो गई. तो ये जो ल्यूमेन इतना बड़ा था जिसके अंदर से ब्लड प्रेशर ने पास करना था और इसका प्रेशर था 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, तो ये अब इंक्रीज़ होकर प्रेशर पहुंच गया 200 पे और ल्यूमेन का जो साइज़ था वो डिक्रीज़ हो गया. और यही काम होता है जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा लिपिड इंटेक करता है, चर्बी खाता है, ज़्यादा फैटनिंग चीज़ें खाता है. सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट बाय जॉनसन एट ऑल विच शोज़ दैट व्हेनेवर किडनी इज़ एक्सपोज टू हाई सॉल्ट डाइट तो हाइपरटेंसिव हो जाता है, लो सॉल्ट डाइट हो तो नॉर्मोटेंसिव हो जाता है. इसीलिए कहते हैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ कभी भी हाई सॉल्ट डाइट ना ले. अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है. एक स्पेशल टाइप की हाइपरटेंशन होती है जिसका नाम है कॉक्टेशन ऑफ, let me write some special types of hypertensions. One is known as coarctation of aorta. coarctation of aorta में क्या होता है कि aorta एक लेवल के ऊपर कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है. तो उस एक लेवल पे कंस्ट्रिक्शन की वजह से, मैं यहाँ पर आपको अगर एक aorta बनाकर दिखाऊं तो उसमें देखिएगा कि अगर उसकी कंस्ट्रिक्शन होती है, ये aorta हमने बना दिया. चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं. अगर इसको मैं कंस्ट्रिक्ट कर दूं तो क्या होगा? इस्कीमिया हो जाएगा. उस इस्कीमिया की वजह से क्या होगा? और कंस्ट्रिक्ट करते हैं और कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं.
उस इस्कीमिया से क्या होगा, रेनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, वही वन किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन को याद करें। तो अगर एओर्टा किसी वजह से भी कंस्ट्रिक्ट है तो उसमें आप देखिए वन किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी इंक्रीज ब्लड प्रेशर की। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, इसके बाद आती है एक्लेम्शिया या हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि चूँकि बॉडी एडिमेटस हुई हुई होती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की रिटेंशन हुई हुई होती है, तो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एन अदर बीइंग इज़ फॉर्म्ड इन द फीमेल्स बॉडी, इन द मदर्स बॉडी। तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी भी डेवलप हो जाती है, विच कैन बी डेंजरस, और उस कंडीशन का नाम एट टाइम्स हो जाता है प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया, जबकि पेशेंट को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं एंड समटाइम्स इट मे बी लीथल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट, to control edema, to control obesity, and specifically control the vascular tension, और उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। सो ये दो चीज़ें और से समझ लीजिए, ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी। So this is a summary of whatever is being taught here, and this is all. So most of the factors are genetic factors, dysfunction of membrane mechanisms of vascular smooth muscle cells, disorders of sodium exchange in nephron epithelial cells। बाद दफ़ा किडनी के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, सोडियम इंटेक इज एक्सक्रीटेड ओनली विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो 18 एंड 19 ये आप लोगों ने साथ साथ पढ़ने हैं, ताकि आप लोगों को ब्लड प्रेशर की लॉन्ग टर्म और रैपिड कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।